Good morning, students. Welcome to the class. Last class was disturbed due to some of the technical issue, but I have tried my level best to brief you up about the networking fundamental. Today, I will cover the entire syllabus, which is meant for the chapter networking fundamental. And for the sake of the class, let me say that I am using the book Shramita Arora. Okay, I am using the book Shramita Arora, and I will be giving a brief lesson of the networking, which is meant for the subject subject IT 402. Okay, let me write it here. So IT under IT 402 we will under IT 402 we will cover the syllabus of chapter networking fundamental. Okay, according to book of Shumita Arora, right? Under IT 402 we shall cover the syllabus of chapter networking fundamental, which will be according to the book of the Shumita Arora, right? Okay, so let's start. I have already taught. So I have already taught you. You can see here. You can see here. I have already taught what is network. This is the combination of two or more than two computers. Okay. What I have taught, we will discuss once again about the network. So network, it is the collection of two or more than two computer. Okay. When the computer was the first developed, this is all about the history has been discussed here. I'm not going to discuss the history any further. Simply, I would like to say when computer were first developed, many intended for a personal use, for their own use. ठीक है, सब कोई अपने यूज के लिए और अलग अलग यूज के लिए था. तो सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बता दें, तो अंडर हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क ये जो यहाँ कहा जा रहा है, under this portion it focus on the two things. Okay, this section focus on the things that I'm going to draw here. ये कह रहा है कि जब कंप्यूटर बना था तो सब कोई अपने अपने यूज के लिए थे, अपने अपने यूज कर रहे थे. फिर बाद में अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, क्या बोल रहे हैं हम, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जैसे भारत में रक्षा मंत्रालय है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय है था. ठीक है, तो क्या था, रक्षा मंत्रालय, उसकी एक एजेंसी थी. उस एजेंसी का नाम क्या था, आरपा. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एजेंसी? द नेम ऑफ द एजेंसी वाज आरपा. ओके, द नेम ऑफ द एजेंसी वाज आरपा. ओके, आई एम राइटिंग हियर ARPA. Okay, ARPA. It stands for Advanced Research Project Agency. Okay, Advanced Research Project Agency. Right. So ARPA, this was the agency. It was the agency of, ये क्या था? It was the agency of Department of Defense, America. Right. It was the agency of Department of Defense, America. ठीक है. Since agency was working on its project. Okay. Since agency was working on its project, which agency I'm talking about? I'm talking about ARPA. Since ARPA was working, it needed to share the data. ARPA को डेटा को शेयर करना था.
ठीक है, जब भी कोई आदमी प्रोजेक्ट पर वर्क करता है, विन मोर देन वन और टू पीपल, व्हेन दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, दे नीड टू शेयर द डेटा. Same was the work with the ARP as it was working on the project. It was working on one of the project of the Department of Defense of the America. It need to share the data. It need to share the data. You also make the project involving 2 or 3 of your friends. While you are involved on the project, you need to share the data. While you are so for the sharing of data, Department of Defense, they joined their computer. They joined their computer, and this was the year 1967. Okay, this was the year 1967, right? So this was 1967, and US Department of Defense, that was called ARPA. It was working on the one project, and it need to share the data. For this, they joined their computer. And this was called to be known as ARPANET. Okay, this was called to be known as ARPANET. ARPANET was the first network of the world, developed in 1967. You can take it down. Okay, what is ARPANET? क्वेश्चन आए या ना आए बोर्ड में इससे, ठीक है, मगर जानकारी के लिए ये जरूरी है. दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? वो था ARPANET. ठीक है, ARPANET याद रखना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, राइट. जब ARPANET ने एक नेटवर्क बना दिया, तो अमेरिका में एक और इंस्टीट्यूशन था, नेशनल साइंस फाउंडेशन, एक और था ऑर्गेनाइजेशन. दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर द प्रमोशन ऑफ science and technology among the students, and it was known as the National Science Foundation, NSF. जब देखा कि भाई ARPANET ने तो एक अपना नेट बना लिया, तो उसके देखी उसी के लिए, उसी के जैसा एक और NSF ने भी अपना नेट बनाया, और उसका नाम रखा NSF नेट. उसका नाम क्या रखा? NSF नेट. ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन सा आया? सबसे पहले ARPA ने अपना नेटवर्क बनाया. ARPA क्या था? अब ये हम चर्चा दोबारा हम नहीं करेंगे. तो सबसे पहले कौन आया? ARPA आया. ठीक है, दिस वाज द ARPA आया. फिर एक नेटवर्क और आया, कौन सा आया? NSF नेट आया. अमेरिका में सारे हो रहे हैं बिटवीन 1967 to 1980. It was the development era for the internet for the world that was going in America, right? फर्स्ट कम ARPANET. सबसे पहले ARPA ने अपना एक नेटवर्क बनाया, उसका नाम रखा ARPANET. NSF ने नेट बनाया, उसका नाम रखा NSF नेट. ठीक है, अब ARPA जो नेटवर्क बनाया वो अपने लिए बनाया, अपने डिपार्टमेंट के लिए बनाया, उसके डिपार्टमेंट के लोग यूज कर रहे थे. NSF ने जो नेटवर्क बनाया, उसके NSF में उसका यूज हो रहा था. इट वाज यूज्ड इन द नेशनल साइंस फाउंडेशन अमेरिका फॉर देयर ओन पर्पस. ARPA was using it for its own purpose, NSF was using it for own purpose. Now, अब देखा कि भाई ये NSF वाले अपना बना लिए, ARPA वाले, तो कुछ प्राइवेट एजेंसी नेटवर्क, they also came and they also formed some network. ओके, पेड सर्विस पर कुछ प्राइवेट एजेंसी वाले भी अपना बना लिए. ठीक है, तो यू कैन सी द सबसे पहले कौन सा आया? सबसे पहले ARPA आया. ARPA नेट. Okay, first it came ARPANET, then came NSF net, then came NSF net, and then some private agency networks emerges. ठीक है, कुछ प्राइवेट एजेंसीज नेटवर्क आ गए. ठीक है, PR प्राइवेट एजेंसी नेटवर्क. ओके, तो कुछ प्राइवेट एजेंसी के छोटे छोटे नेटवर्क आ गए. फिर 90 में क्या हुआ कि ये सारे लोग आपस में जुड़ गए. ठीक है, ये आपस में जुड़ गए. ठीक है, ये आपस में जुड़ गए. ठीक है, और ये जुड़ गए आपस में, और ये इनका आपस में जुड़ना यही कहलाया इंटरनेट. ये आपस में जुड़ गए, इनका आपस में जुड़ना यही कहा गया इंटरनेट. ठीक है, तो व्हाट इज इंटरनेट? इट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. एक नेटवर्क कहाँ है? ARPANET में है. एक नेटवर्क कहाँ है? साइंस फाउंडेशन में है. एक नेटवर्क कहाँ है? प्राइवेट एजेंसी A में है.
एक नेटवर्क कहाँ है, प्राइवेट एजेंसी बी में है, सब आपस में मिल गए और इसी को कहा गया इंटरनेट। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में सबसे पहले इसमें से आरपानेट वो अपने आप को किनारे कर लिया, आरपानेट किनारे हो गया, एनएसएफ नेट फिर बाद में किनारे हो गया। फिर उसके बाद धीरे 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 और प्राइवेट एजेंसी नेटवर्क इसमें जुड़ते गए थे। सबसे पहले जो जुड़ा था व्हाट्सएप पे भी ऐसा देखते हो ना, हो ग्रुप बनाया कौन, उसमें जोड़ा किसको किसको, और जो ग्रुप बनाया था वो सबसे पहले छोड़कर भाग गया, मगर ग्रुप रह जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरह का यहाँ पर हुआ था कि जो एनएसएफ नेट और आरपा नेट जो थे वो अब छोड़कर चले गए, इंटरनेट से अपने आप को अलग कर लिए, मगर जो इंटरनेट जो बना वो इंटरनेट अपने जगह पर कायम रह गया। और आज इंटरनेट इतना विस्तृत हो चुका है, इंटरनेट इतना डेवलप्ड हो चुका है, इतना रिच हो चुका है, इतना एडवांस हो चुका है कि आज आदमी भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है और ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, so this is the gist of the history of the internet what I have said you। इंटरनेट, ठीक है, अब इंटरनेट क्या है, इट कैन बी सेड एज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर के नेटवर्क को हम, बहुत सारे कंप्यूटर के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क। ठीक है, लेट्स सी हियर, दिस इज what I mean to say, I'm explaining it here। okay, I'm explaining it here। okay, suppose I have created a network here। okay, one computer, two computer, three computer I have connected, I have created a network, this is one network। here somebody else has also created one network of two computer। okay, here somebody else has also created somebody else has also created a network। okay, here somebody else has also created a network। okay, and it what I said, internet is a network of network। इंटरनेट इज अ, अब ये क्या है, ये भी इससे जुड़ गया, ये भी इससे जुड़ गया। ठीक है, सब आपस में जुड़ गया, दिस इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, दिस इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, व्हाट वी कैन से, ये नेटवर्क का नेटवर्कों का नेटवर्क है। ठीक है, अदर डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेट में भी, इट इज अ ग्लोबल कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर ओवर थाउजेंड ऑफ नेटवर्क। इट इज अ ग्लोबल कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर ओवर थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क। हम बिलियंस और थाउजेंड की बात नहीं करेंगे, जो पिक्चर पे दिखाई दे रहा है हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पर कितने नेटवर्क हैं, here there is three network, you can pretty see here well, here there is one network, here there is two network, and here there is three network। ठीक है, and here there is one computer, two computer, three computer, फोर कंप्यूटर, और यहाँ पर एक हो गया फाइव कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ एक सिक्स कंप्यूटर, और ये सेवन कंप्यूटर, इट इज एट कंप्यूटर। इस पिक्चर के सेंस में हम क्या कहेंगे, दिस इज कलेक्शन ऑफ एट कंप्यूटर ओवर थ्री नेटवर्क। हम क्या बोलेंगे इसको, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ, व्हाट इज दिस, दिस इज कलेक्शन ऑफ, दिस इज collection of, this is collection of eight computer over three network। okay, तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज अ ग्लोबल कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर ओवर थाउजेंड्स ऑफ network। I hope this topic is clear to you। if it does not be clear to me, you can ask me again। okay, so I hope you have understood what is network। नेटवर्क समझ में आ गया होगा, नेटवर्क क्या है। जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, वहां पर एक टर्म आता है क्लाइंट और सर्वर। ठीक है, नेटवर्क में सबसे पहले एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है। जो
जो नेटवर्क में जो कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है उसको सर्वर कहते हैं। द वन ऑफ द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क which control or coordinate the other computer in a network which serve the resources, it is called as server, and which make request for the resource, this is called client. I hope it is clear to you. Now benefit of networking I have already taught you. The benefit of networking I have already taught you. Under the benefit of networking I have already taught you that it is it break the barrier of communication. It is very cost effective. The type of we can send the data and it enhance the communication. I have already taught you it break the barrier of distance, cost and time. All type of data can transfer through it. It can enhance the communication. This is all about the benefit of the network. Then in my last class, I have also taught you about the types of the network. Okay, under the types of the network, I have taught you LAN, MAN, and WAN. Okay, I have taught you LAN, MAN, and WAN. Local area network, metropolitan area network, and the wide area network. If I say about the LAN, it can spread up to local area network. It can spread up to 1 किलोमीटर। बुक में लिखा जरूर है 1 किलोमीटर, मगर ये मीटर में होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी विद इन द मीटर। ठीक है, इट शुड बी विद इन द मीटर। अब राउटर और गेटवे और हब को लगाकर इसको 1 किलोमीटर के दायरे तक बढ़ा लिया गया, मगर ये लोकल एरिया नेटवर्क इट इज विद इन द कैंपस, विद इन द मीटर। किलोमीटर में कहना का मतलब ये हो जाएगा वी आर टॉकिंग अबाउट द metropolitan area network. Okay, I hope it is clear to you. Local area network, it can share the data information within the organization within the geographical boundary. ठीक है, अब यहाँ पर देखो लोकल एरिया नेटवर्क का बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि एक सर्वर है, दिस इज सर्वर, ये सर्वर है। ठीक है, और इससे कनेक्टेड एक कंप्यूटर, इससे कनेक्टेड 2 कंप्यूटर, इससे कनेक्टेड 3 कंप्यूटर, इससे कनेक्टेड 4 कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक क्लाइंट है, एक सर्वर है और 4 क्लाइंट है। ठीक है, सर्वर का काम क्या है? टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द अदर कंप्यूटर, कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, सर्वर का क्या काम है? कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, सर्वर का काम क्या है? वर्क ऑफ सर्वर, वर्क ऑफ सर्वर is to control and coordinate the other computer. Okay, other computer and sharing of resources. So this is the work of the server. ठीक है, ये सर्वर का काम है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगले पेज में चलेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका दायरा बढ़ गया। सिटी में, पूरे सिटी में स्प्रेड होता है। इट इज मोर देन, इट स्टार्ट फ्रॉम बिटवीन 1 किलोमीटर टू ऑनवर्ड्स। वाइड एरिया नेटवर्क वेयर देयर इज नो ज्योग्राफिकल बैरियर, जहां पर कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं हो, वहाँ वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कंपोनेंट रोल। यू कैन सी हियर टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कंपोनेंट रोल। फर्स्ट इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और दूसरा है पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में और पीयर टू पीयर नेटवर्क में एक ये अंतर क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में एक डेडिकेटेड सर्वर होता है, एक सर्वर बना हुआ होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, तुम अपने क्लास में देखते होगे कि एक मॉनिटर तय है, वो मॉनिटर है। और एक क्लास देखते हो कि जरूरत पड़ने पर कोई भी मॉनिटर बन के खड़ा हो जाता है, बाहर आकर खड़ा हो गया, 10 मॉनिटर बना हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर 10 मॉनिटर की बात नहीं करेंगे। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में हम क्या देखते हैं कि वहां पर एक
सर्वर फिक्स होता है और बाकी सारे कंप्यूटर क्लाइंट होते हैं। मगर पीयर टू पीयर में क्या होता है, पीयर टू पीयर का मतलब होता है कभी हम सर्वर बन गए तो कभी तुम क्लाइंट बन गए, ठीक है, कभी हम सर्वर बन गए तो कभी तुम क्लाइंट बन गए। दिस इज ऑल अबाउट द पीयर टू पीयर, राइट। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है कि वहां पर एक सर्वर और एक सर्वर फिक्स होता है, ठीक है। यू कैन सी हियर इन द बुक the role of server is to provide the service to the client on the computer as per their request. एक होता है और सर्वर होता है, सर्वर फिक्स है। दूसरा क्या है, द रोल ऑफ, अब यहाँ पर देखो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर के बारे में ये बता दिया और यहाँ पर क्लाइंट के बारे में बता दिया। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है कि क्लाइंट और सर्वर फिक्स होता है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज हियर दैट इज डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। यहाँ एक डेडिकेटेड सर्वर होता है, एक सर्वर फिक्स होता है, ठीक है। अब जबकि पीयर टू पीयर में क्या होता है, पीयर टू पीयर में क्या होता है कि जरूरत पड़ने के आधार जरूरत के अनुसार कोई भी सर्वर बन जाता है और कोई भी क्लाइंट बन जाता है। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क देयर इज नो स्पेशली डिजाइन सर्वर, ठीक है। यहाँ पर कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क देयर इज नो स्पेशली डिजाइन सर्वर। यहाँ is clear to you, clear to you. Now we will move to the next page, ठीक है, and next page. Then it is internet and its component. We will see internet and its component. इंटरनेट इज ए कंप्यूटर, इंटरनेट के बारे में हम शुरू में बता चुके हैं। इंटरनेट इज अ ग्लोबल, इंटरनेट का डेफिनेशन क्या है, इट इज अ ग्लोबल, ग्लोबल मतलब पूरे दुनिया में, इट इज अ ग्लोबल global network, it is a global network, it is a global network which can be accessed by the from everywhere, okay। इंटरनेट क्या है, इट इज अ, एक तो ये भी है, इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, सबसे पहले डेफिनेशन बताया थे, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। एक और डेफिनेशन हम इंटरनेट का क्या बताए थे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर ओवर थाउजेंड ऑफ नेटवर्क्स, okay। it is a collection of billions of computer over thousand of network, ठीक है। तो इंटरनेट इज मेड अप ऑफ many component। now internet can be said as a, it is made up of many components, many different types of component, इसी को हम बोल रहे हैं, it is a collection of heterogeneous component, heterogeneous, ठीक है। it is a collection of billions of heterogeneous computer over thousands of network, right। the most important component of internet is the world wide web। इंटरनेट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, that is world wide web, ठीक है। world wide web was first introduced in year 1989 by the Tim Berners-Lee, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इज सेट इट नाउ, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इज सर्विसेज, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये सर्विस है जो इंटरनेट के ऊपर रन कर रहा है। डोंट कंफ्यूज बिटवीन द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब, बोथ आर द टू डिफरेंट थिंग। इंटरनेट के ऊपर वर्ल्ड वाइड वेब का सर्विस चल रहा है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब was introduced and became a part of internet in 1989। World Wide Web is a set of program, a standard and protocol governing the way in which multimedia files that contain combination of text, photograph, graphic, video, audio and created are displayed। Before World Wide Web, internet was mainly used for obtaining textual information, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब के पहले सिर्फ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। तो अगर वर्ल्ड वाइड वेब का डेफिनेशन को और समझना है
तो हमें तुम बताओ कि गूगल से तुम क्या क्या सर्च करते हो। यू ट्राई टू थिंक व्हाट यू सर्च ऑन द गूगल। You try to sum up the text, you try to search some of the file, you try to search some of the audio, you try to search some of the video, you try to search some of the animations. So World Wide Web is a global collection of billions of files, animations, billions of files, animation, networking devices, etc. So वर्ल्ड वाइड वेब क्या, ये कलेक्शन है, और वर्ल्ड वाइड वेब एक अलग चीज है और इंटरनेट अलग चीज है। दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं करेंगे। ठीक है, इंटरनेट 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 इट इज फिजिकल स्ट्रक्चर which provide the accession of वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करने के लिए इंटरनेट चाहिए। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इट इज ए ग्लोबल कलेक्शन ऑफ बिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ मल्टीमीडिया फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो, इमेज, क्लिप्स। ठीक है, जितने भी चीज तुम ये खोजते हो गूगल पर, जैसे कोई आदमी कभी कोई खोज रहा है, इमेज खोज रहा है, कोई टेक्स्ट खोज रहा है, कोई फाइल खोज रहा है, कोई पीडीएफ खोज रहा है, कोई एनिमेशन खोज रहा है, तो इट इज ए ग्लोबल कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ फाइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, एनिमेशन, ओके, मल्टीमीडिया फाइल्स। ओके, तो वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विसेज है जो इंटरनेट के ऊपर रन करता है। जो अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो बिलियन जो तुम्हारा वर्ल्ड वाइड वेब है वो धरा का धरा हुआ रह जाएगा। इंटरनेट के थ्रू ही मेरी आवाज तुम्हारे तक जा रही है। ठीक है, मेरी आवाज तुम्हारे तक जा रही है। अब मान लो हम यहाँ पर अब वर्ल्ड वाइड वेब पर तुम्हारा डीएवी का वेबसाइट है, ठीक है, और भी दूसरा वेबसाइट है। वेबसाइट कैसे बनता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं वेबसाइट के लिए बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल को मिलाकर वेबसाइट बनता है। ठीक है, वो सारा फाइल धरा का धरा हुआ रह जाएगा अगर इंटरनेट अगर काम नहीं करेगा तो। डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड एंड वेब, most people think that world wide web is a internet and vice versa, which is not true। ठीक है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि इंटरनेट ही वर्ल्ड वाइड वेब है, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है जो कि इंटरनेट के ऊपर चल रही है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब वाज फाउंडेड बाय द टिम बार्नर ली इन 1989 एंड 1991। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेट। The other component of internet is a forum which people can speak advice about the topic। I hope it is clear to you। Next, we will move to the next page। ठीक है, then research database, Usenet, email and telnet, these are the component of the world wide web। ठीक है, अभी हम लोग इंटरनेट के बारे में देख लेंगे। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब इट इज अ कलेक्शन ऑफ, हम पहले ही बता चुके हैं कि गूगल पे जो खोजते हो वो सारा कंपोनेंट किसका हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब का कंपोनेंट हो गया। तुम खुद से सोचो कि क्या क्या चीज खोजते हो। ठीक है, जो भी चीज खोजते हो। ठीक है, कुछ लोग अपना जो है ब्लॉग खोजता है, कोई ब्लॉग खोजता है, कोई उसके बाद डिस्कशन फोरम खोजता है जिसको हम लोग यूजनेट कहते हैं, कोई टेलनेट खोजता है। ठीक है, तो all these are the component of the world wide web। okay, then internet। okay, what is internet? internet is a collection of computer। ये कंप्यूटर का कलेक्शन है, कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड वेब काम करता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी। क्लाइंट समझा दिए हैं, सर्वर समझा दिए हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम क्लाइंट समझा चुके, अब ये आज भी क्लाइंट समझाए हैं, आज भी क्लाइंट समझा दिए हैं, सर्वर भी समझा दिए हैं। सर्वर इज वन ऑफ द कंप्यूटर व्हिच सर्व द रिक्वेस्ट विद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। वेब पेज क्या है? वेब पेज इज ए hypertext document that is hosted on the web server, hosted on internet। यहाँ पर कहना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होगा, ये यहाँ पर कहना सही नहीं होगा। वर्ल्ड वाइड वेब वेब पेज इट इज अ hypertext document which is hosted on the web server। ठीक है, वेबसाइट इट इज अ कलेक्शन, वेबसाइट इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। web portal the website which allows the hosting of the web page। एक वेबसाइट
जो दूसरे वेबसाइट को होस्ट करने देता है उसको वेब पोर्टल कहते हैं। वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन। ब्राउज का मतलब होता है लाना। क्या लाता है? गूगल वेब सर्वर से वेब पेज को उठा के लाता है। क्या लाता है? गूगल क्रोम लाता है तुमको वहां से पिक्चर उठा के लाता है। कहां से? वर्ल्ड वाइड वेब से लाता है। क्या लाता है गूगल क्रोम? वो तुम्हारा जो है पिक्चर मूवी उठा कर लाता है। कहां से लाता है? वेब सर्वर से लाता है। वेब सर्वर क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब इज आल्सो कॉल्ड एज वेब सर्वर। ठीक है, तो वेब ब्राउजर और वेब सर्वर में कंफ्यूज नहीं करना। वेब ब्राउजर विच ब्राउज का मतलब ही होता है ब्रिंग। वेब ब्रिंगर किसको कहो? अगर ब्राउज को नहीं समझ रहे हो तो ब्राउज का एक और मीनिंग क्या होगा? ब्रिंगर, विच ब्रिंग द कंटेंट फ्रॉम द वेब ब्राउजर वेब server which serve the resource. I hope it is clear to you. Time is very less. Let's move to the next page. We'll see which has been completed or not. वेब क्लाइंट इसी को हम लोग कहते हैं। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल स्टैंड्स फॉर द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, इट स्टैंड्स फॉर द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जितने भी चीज तुम्हारा तुम गूगल से डाउनलोड कर रहे हो सबका एक अपना एड्रेस है, सबका एक अपना यूनिफॉर्म एड्रेस है। उसी एड्रेस को तो हम यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म लोकेट मीन्स एड्रेस। दिस इज लोकेट। लोकेट का मतलब क्या हुआ? एड्रेस। ओके, लोकेट का मतलब एड्रेस। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स, हर रिसोर्स का एक अपना इंटरनेट की दुनिया में एक एड्रेस है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग इज ए ऑनलाइन जर्नल वेयर वी कैन पोस्ट आवर फीलिंग। ठीक है, ब्लॉग क्या है? ब्लॉग इज अ ऑनलाइन जर्नल where we post our feeling. It is also called as web blog और blog। ठीक है, जो आदमी ब्लॉग लिखता है उसको ब्लॉगर कहते हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग न्यूज ग्रुप्स। न्यूज ग्रुप एक मतलब ग्रुप है, डिस्कशन फोरम है जहाँ पर हम लोग कॉमन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। ईमेल है, ईमेल के बारे में पता पहले भी बताए होंगे। ठीक है, सेंडिंग एंड रिसीविंग द मेल इलेक्ट्रॉनिकली, दिस इज कॉल्ड एज ईमेल। ठीक है, देन वी हैव द इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी, डायल अप कनेक्शन अब खत्म हो चुका है दुनिया से। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, हालांकि पढ़ाई में भी डायल अप कनेक्टिविटी का बात चल रहा है। सोच सकते हो हम लोग कितने आगे हैं कि पुराना जो खत्म हो गया है उसको भी हम लोग पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, 2006-7 में ही ये खत्म हो चुका है। नहीं, खत्म नहीं हुआ था 2006-7 में, पर कमजोर पड़ गया था। 7-8 में तो ब्रॉडबैंड आ गया। ठीक है, थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। वेब ब्राउजर एंड वेब क्लाइंट। ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ब्राउजर क्या है? ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, जबकि मान लो अब इफ यू आर नॉट यूजिंग, जैसे मान लो एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, मेरा कंप्यूटर और तुम्हारा कंप्यूटर दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। मेरा कंप्यूटर सर्वर है, तुम्हारा कंप्यूटर क्लाइंट है। दैट इज वेब क्लाइंट। दैट इज वेब क्लाइंट। दैट इज नॉट द वेब ब्राउजर। दैट इज अ वेब क्लाइंट, एनी कंप्यूटर which is connected ब्राउजर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच रन्स। चलो, और किसी को कोई प्रॉब्लम? और किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ? और किसी